Hello and Namaskar everyone. Welcome back to New Era Global School in Aptitude class. Myself Neha Vadera and I am your aptitude teacher. Hope you all are enjoying your online classes, right? But we will continue our aptitude with YouTube videos only, right? That is one day in a week. So let's see what we have done in our last class. So please take out your aptitude book. Now, in our last class, we have done coding, decoding, right? We have completed chapter number 6, that is coding and decoding. What was it? Expressing something in a secret way is known as coding, and the process of understanding a code language is known as decoding. अगर आप वो code language समझ गए तो that is known as decoding, right? So we have finished this chapter 6, that is page number 22 and page number 23, right? And today we'll move to our next chapter, that is chapter number 7, perceptual reasoning. What is perceptual reasoning? The ability to use knowledge gained visually to take correct decision or act accordingly. Right? ये वो knowledge जो हमें visually means हम जो देख के बोलते हैं, right? That is known as perceptual reasoning. Okay? हमें जो numbers दिखते हैं, it may be in numbers, letters, right? But for the confusion, they have interchanged the position of the numbers, right? And you have to find the correct option. Okay? In each of the following question, you have to choose the given combination of numbers. Choose the given combination of numbers, letter numbers from amongst the alternative provided below in each question. See, this is the group of numbers they are given, and below there are alternative given to this number. Alternative means the numbers are same but the positions are changed, right? Now let's go. Number 1, 493627. The options are 493267. Can you see they have changed this 26? They have alternate these numbers. Next is 493627. Here they have changed the position of 2 and 7, 7 2. The third one 493627 is the same. 496327. Again they have changed, right? 4966 को आगे लिया 3. So what will be the correct option? See, here all the combination given in the option appears similar. Almost the numbers are similar. You can see this certain number same है. However, the sequence of number is different. Sequence of the numbers different है except C. C is the same. बाकी सब changes है. So the correct answer will be yes, C only. The correct answer will be C. Right? Let's move to number 2. 662924, 662294. They have numbers are same but positions are changed. 662924. And here it is 662944. 4 को 2 times लिया गया. Number C 662942. Interchange हुआ. Last one 662924. Last one is same. So the correct answer is number D. Right? The next one, number 3, 259748. 259478. See, they have changed. 259748. 2597, same.
259784. This is also change. 257948. So the B is the correct answer because it is same. 259748. Easy. You have to find just similar numbers, but the position also should be same, right? Because numbers तो almost same है, सीक्वेंस बदल दिए गए नंबर्स के, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस फाइंड करके टिक करना है, राइट? तो लेट्स मूव टू 4 नंबर 727956, 727956, 729756, 727965, 729765. Almost same numbers, but the sequence has been changed. The first one has not changed. It is totally same, even the sequence and the numbers. 727956. So the correct answer will be number 4. Right? So the rest you can do for your homework. That is up to 10. From 5 it is numbers and alphabets are same. You have to find that thing only. Same चीज़ आपको find करना है. A5 G6 H7. A5 G6 H7. See, the B1 is correct answer. So likewise you have to do up to 10. Right? So let's move to chapter number 8. That is blood relations. What is that? Chapter name is blood relation. Right? Now see, pointing to a woman, Shiv said, "She is daughter of the only child of my grandmother." How is the woman related to Shiv? Pointing to a woman. Shiv said, मतलब एक वुमेन को शिव ने पॉइंट करके बोला, who is that? Daughter of the only child of my grandmother. मतलब वो लेडी उसके ग्रैंड मदर की एक ओनली डॉटर है. How is a woman related to Shiv? Pointing to a woman, just read twice the question, then you will understand. She is the daughter. वो लेडी को बोल रहा है कि वो डॉटर किसकी है? ओनली, मतलब ओनली चाइल्ड ऑफ उसकी ग्रैंड मदर, मतलब शिव की नानी, राइट? शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर. शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर. हाउ इज अ वुमेन रिलेटेड टू शिव? यू कैन टेक अ रफ नोटबुक, आप ऐसे भी कर सकते हो. एक लेडी को उसने पॉइंट किया कि वो कौन है? डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड. किसकी बेटी है? उसकी ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड, यानी कि उसकी मम्मी उसकी बेटी है, मतलब उसकी क्या हुई? सिस्टर, राइट? डॉटर किसकी है? वो ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, उसकी नानी की ओनली चाइल्ड की बेटी. देन मतलब हाउ इज अ वुमेन रिलेटेड टू शिव? तो शिव की रिलेशन में क्या है? उसकी ऑलरेडी बहन, शिव की बहन. गॉट इट? डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड यानी कि उसकी मम्मी, शिव की मम्मी, उसकी डॉटर है वो. तो शिव की कौन हुई? बहन. मम्मी की बेटी शिव की बहन. तो आंसर विल बी सिस्टर, राइट? लेट्स मूव टू नंबर बी, सॉरी नंबर 2. Now number 2, a girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is girls. A girl introduced a boy, वो अब एक लड़के को इंट्रोड्यूस की, son of the daughter of the father of her uncle.
अ बॉय इंट्रोड्यूस अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय, मतलब वो एक बॉय को इंट्रोडक्शन करवा रही है। कौन है? सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, मतलब यहाँ अंकल के में आया वो। कैन यू सी? सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, दैट द बॉय इज गर्ल्स मतलब कजन। राइट? A girl introduce a boy as the son of the daughter, मतलब बेटा है उसके पापा के और उसके ऑफ हर अंकल, उसके अंकल का। तो उसका क्या हुआ? कजिन। तो राइट आंसर विल बी नंबर सी, दैट इज कजिन। आपको जस्ट इमेजिन करना है नोटबुक पे फिगर, यू कैन डू अ माइंड मैपिंग, फिगर बनाओ, माइंड मैप करो कि सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, यह लॉजिकली है या अंकल का रिलेशन में आ गया, दैट इज सिंपल कजन। अंकल तो नहीं हो सकता, ब्रदर ओन होता है, फादर ऑल्सो नॉट आंसर, सो द आंसर विल बी कजन। राइट? नाउ नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. Whose photograph was it? Pointing to a photograph. फोटोग्राफ में पॉइंट करके बोल रहा है आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर, मतलब उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास मेरा कोई ना भाई है ना बहन है, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। आदमी के पापा जो है फादर, ही इज माई फादर्स सन, वो मेरे पापा का बेटा है। तो अपने पापा का बेटा तो सीधी बात है वो खुद ही होगा, क्योंकि उसके तो पहले ही बता दे कि मेरे भाई बहन तो है ही नहीं। तो बट द मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, मेरे पापा का बेटा है। तो पापा का बेटा तो वो ओन ही होगा, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि मेरे पास ना भाई है ना सिस्टर है। राइट? इफ यू लॉजिकली देखो, ये डिक्लेयर्ड फर्स्ट ओनली कि आई हैव नो ब्रदर्स नो सिस्टर, मेरे पास भाई बहन नहीं है, बट द मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, मेरे पापा का बेटा है, सीधा बात है पापा का बेटा मीन्स वो खुद, तो ही इज ऑन। हुज फोटोग्राफ वॉज इट? वो उसकी फोटोग्राफ थी, खुद की फोटोग्राफ थी। राइट? नाउ नंबर 4, शिव सेड टू पिंकी, her husband is only son of my mother. How is Pinky related to शिव? शिव ने पिंकी को बोला कि उसका हस्बैंड ओनली सन ऑफ माई मदर। अब सी, यहाँ ऑलरेडी बोल रहा है कि उसका हस्बैंड, पिंकी का हस्बैंड जो है ओनली सन ऑफ माई मदर, उसकी मम्मी का ओनली सन है। जब एक लौता सन है तो शिव ही होगा ना। तो ये हाउ इज पिंकी रिलेटेड टू शिव? तो उसकी क्या होगी? उसकी वाइफ ही होगी, क्योंकि जब दे हैव फर्स्ट ओनली दे आर टेलिंग कि हर हस्बैंड, उसका पति इज ओनली सन, ओनली मतलब एक लौता बेटा है इसकी मम्मी का, ऑफ माई मदर। तो पिंकी का रिलेशन उसकी क्या होगा? वाइफ की, क्योंकि जब ये ओनली बेटा है तो शिव ही है, दूसरा बेटा तो है ही नहीं। दे आर टेलिंग ओनली दूसरा ओनली सन ऑफ माई मदर। राइट? ऑब्वियस इट इज वाइफ, उसकी वाइफ है, रिलेटेड उसका वाइफ। नाउ सी, ए एंड बी आर ब्रदर्स, जी एंड एच आर सिस्टर्स। ए और बी कौन है? भाई, जी एंड एच सिस्टर्स। ए सन इज एच ब्रदर, ए का जो बेटा है वो एच का भाई है, ए का बेटा एच का भाई है। ए सन इज एच ब्रदर, ए का जो बेटा है, ए का सन वो एच का ब्रदर है। नाउ हाउ इज बी रिलेटेड टू जी? तो बी और जी का रिलेशन क्या होगा? अब देखो ये दोनों भाई है, कैन यू सी? और इसका बेटा, ए का जो सन है वो इसका भाई है एच का।
तो बी क्या होगा, जब ये इसका बेटा है, ये मतलब इसका बेटा का रिलेशन में ये इसका आया, तो बी विल बी अंकल, बी ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए एंड बी कौन है, भाई है, एंड जी एंड एच आर सिस्टर। ये इन दोनों का रिलेशन नहीं बता रहा है, ए और बी दो भाई है, जी और एच दो सिस्टर्स है, राइट। ए का जो बेटा हुआ, ए का जो बेटा है, बेटा वो इसका भाई है। यू कैन अंडरस्टैंड, जी एच और ए का बेटा, सपोज हम एम रखते हैं, यानी कि जी एच और एम, जी एच और एम भाई बहन है। तो बी उनका क्या होगा, जब ये इसका बेटा है इसकी वहाँ से आया, रिलेशन में आया, राइट। तो ये दोनों भाई है, तो ये मतलब एम का ये फादर हुआ, हमने एम माना ए के बेटे को, तो ये अंकल हुआ, पापा का भाई। तो जब उसका अंकल हुआ एम का, तो ऑब्वियस है जी का भी अंकल होगा, क्योंकि जी और एच तो सिस्टर्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, अंकल, राइट। सो दिस वे लॉजिकली आपको सॉल्व करना है। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, रीड इट ट्वाइस, एक नोटबुक लो, टेक ए पेन और पेंसिल एंड डू द रफ वर्क, माइंड मैपिंग करो, so you can find your answer, right? So complete the rest work for your homework, that is half of the page, 6 to 10, same in page number 24, 6 to 10. So your homework is to complete page number 7 and 8. Complete this 2 page, right? This much for today. Bye bye, take care, see you soon.